Yes. So let me continue this. Okay, so in question 2 we have considered the 3 by 3 matrix. Okay, we have calculated, is the screen visible? Yes, sir. Yeah, okay. Yes, sir. And we have calculated the eigenvalues. So here we got three distinct eigenvalues which are minus 2, 3 and 1. Now let us find the eigenvectors corresponding to each eigenvalue. So let's start from minus 2. So let capital X, which is equal to x1, x2, x3, be the eigenvector corresponding to lambda is equal to minus 2. Therefore, we can write a minus lambda I times x equal to 0, but lambda is minus 2. So it become a plus 2i times x equal to 0. Okay, ये पार्ट याद रखना इजी होता है. इसका मतलब क्या होता है, जस्ट ऐड 2, प्लस साइन आ रहा है इसलिए ऐड करो, माइनस आता है तो सब्ट्रैक्ट करो. सो जस्ट ऐड 2 इन दी डायगोनल एंट्रीज ऑफ ए मैट्रिक्स. रिमेंबर लाइक दिस. प्लस 2 है इसलिए आपको डायगोनल एंट्रीज में 2 ऐड करना है. माइनस 2 आता है तो डायगोनल एंट्रीज में से 2 सब्ट्रैक्ट करना है, लाइक दैट. ओके, सो जस्ट ऐड 2 इन दी diagonal entries of matrix A, you will get this. Okay, and consider the augmented matrix. ठीक है. Okay, and now here since this second row and third row are equal, तो यहाँ पे मैंने immediately एक रो को मैंने जीरो किया है. Okay, and then and after that I have interchange first and second row. ठीक है, मैंने लिखते समय एक ही इसमें लिखा है, but that you can perform separately. Now let me convert this matrix into echelon form. Okay, so what is the operation? What is the operation on R2? R2 minus 4 R1. R2 minus 4 times R1. So just tell me this. So first row there is no change, 1 3 1 0. What about second row? 0. Then bolo, this minus this minus 4 times this. Minus 14. Minus 14. 14. Minus 14. 3 minus 4 is And then minus 1. 9. And your last row is 0. 0. Yes. Okay, yeah. So now this matrix is get converted into echelon form. Okay, so which is in echelon form. Okay, here you can see the rank of this augmented matrix, which is equal to what? What is the rank? Rank of A. Which is equal to rank of n, which is equal to 2, but this value is less than number of variables, which are 3. Okay, variables कितने थे? x1, x2, x3. There are 3 variables. You can see here. Okay, therefore this system has infinite solution. Therefore given system has infinite solution. So to find that solution, again we have to rewrite that system from this final echelon form. So that I can write it as x1 plus 3x2 plus x3 is equal to 0, and minus 14x2 minus x3 is equal to 0. Okay, yeah. Now you can see here there are two equations. There are two equations and 3 variables. Okay, so number of equations are always denoted by m. So there are 2 equations and how many variables? 3 variables are there. अब ये notation समझ में आ रहा है ना सबको? m means equation, n means variable. Okay, so therefore their difference n minus m is 1. तो आपको किसी एक वेरिएबल को वैल्यू असाइन करनी होगी. सो आप मुझे बोलो x2 को असाइन करना इजी होगा या x3 को असाइन करना इजी होगा? X2 को. x3 को, या आपका देन आपको दोनों में से किसी एक को असाइन करनी है. बट अगर आप x3 को असाइन करते हो तो x2 की वैल्यू फ्रैक्शन में चली जाएगी. सो जस्ट टू अवॉइड दिस, लेट मी असाइन x2. या आपका कॉल है टोटली. सो लेट मी असाइन x2 इज इक्वल टू t. सो व्हाट इज माय x3? 14t. माइनस 14t है ना, प्लस हो जाएगा तो वो माइनस में आएगा. नाउ व्हाट इज x1? x1 is minus x3, so minus plus 4t, okay, and minus 3x2, so minus 3t. 11t. So what is that? 11t. 11t. Okay, done. So where this t belongs to R. अभी मेरा क्वेश्चन क्या है? हाउ यू वेरीफाई योर आइगन वेक्टर. आइगन वैल्यूज का मैंने रिजल्ट दे दिया और फर्स्ट लेक्चर में वो पार्ट मैंने आपको एक्सप्लेन नहीं किया था. बट हाउ यू वेरीफाई
your eigenvector. So here if I consider my eigenvector, so capital X which is equal to x1, x2, x3, that is nothing but x1 क्या है 11 t, x2 क्या है t, x3 is minus 14t. If I take t common, I will get that vector as 11 1 minus 14. I don't know whether it is correct or not, but देखते हैं, हम वेरीफाई कर सकते हैं. therefore 11 1 and minus 14 is the eigenvector corresponding to eigenvalue lambda is equal to क्या था -2 ना. -2 ओके ठीक है. अभी मेरा क्वेश्चन क्या, हाउ यू वेरीफाई दिस, इसको वेरीफाई कैसे करोगे कि ये करेक्ट है या नहीं. आपके पास x की वैल्यू है, दिस इज योर आइगन वेक्टर, दिस इज योर लैम्बडा, सो हाउ यू वेरीफाई दिस. और आपके पास मैट्रिक्स ए भी गिवन है, तो इन तीनों में क्या रिलेशन होता है, ये वेरिफिकेशन का पार्ट है. मल्टीप्लाई करेंगे सर. हाँ, ये वेरिफिकेशन का पार्ट है. लेट मी राइट इट बाय अनदर कलर. ये आपको लिखना नहीं है एग्जाम में. सो हाउ यू वेरीफाई दिस. तो आपको यह पता है कि मैट्रिक्स ए में x में और लैम्बडा में क्या रिलेशन है, ax इज इक्वल टू लैम्बडा x. ठीक है. अभी आपके पास दोनों चेक करो वेदर LHS इक्वल टू RHS और नॉट. ए मैट्रिक्स क्या था, लेट मी राइट डाउन दैट मैट्रिक्स. क्या था ये, कॉपी कर लेता हूं. So my A matrix is 2 -2 3 1 1 1 1 3 -1. Okay. Now let me erase this. अब इसका कोई रोल नहीं है. So this is my A matrix. हाँ. What is my X matrix? X क्या है, अभी कैलकुलेट किया आपने. What is that? 11 1 and minus 14. So just check whether this calculation is equal to lambda क्या था, -2 times x or not. मतलब क्या आना चाहिए. हाँ बोलो. टी नाही ना, टी नाही घेता आपण त्याच्यामध्ये. हाँ, टी बाहेर का आपल्याला एकच वेक्टर कॅल्क्युलेट करायचं ना. सो जस्ट एज्यूम टी इक्वल टू 1. यही सोल्यूशन है, बस टी इक्वल टू 1 लेके मैं कंसीडर कर रहा हूँ. हाँ ठीक है. एंड इफ आई मल्टीप्लाइड बाय -2, बेसिकली आपका आंसर आना चाहिए, यहां पे बोलो -22 -2 एंड देन 28 ना. 28. ये चेक करो कि वेदर दिस प्रोडक्ट इज इक्वल टू दिस और नॉट. सो दैट यू कैन चेक ऑन कैलकुलेटर आल्सो इफ यू वांट. अब ये इतना भी डिफिकल्ट नहीं है, कैलकुलेशन भी कोई भी एक वैल्यू चेक कर लेते हैं, कोई भी एक वैल्यू. ठीक है. सो लेट मी जस्ट चेक दिस एलिमेंट. हाँ, ये एलिमेंट चेक करता हूं. सो ये बेसिकली क्या है, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का प्रोडक्ट है. ठीक है. सो 2 into 11 कितना आता है 22 है ना. देन -2 एंड देन -42 प्लस हो जाएगा ना. हाँ नहीं, -42. जस्ट लेट मी चेक. -22 आ रहा है क्या. यस सर. आप ये चेक, कोई भी एक एंट्री चेक करो, इतने सारे एंट्री चेक करने की जरूरत नहीं. अगर आपको ये डिफिकल्ट लग रहा है, आप ये एंट्री चेक करो -2. ये बेसिकली क्या थी, सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम. सो 11 1 12 देन -14 -2. अरे करेक्ट है. तो फिर इसके बाद ऊपर का पार्ट आपको चेक करने की जरूरत है ही नहीं. ठीक है. हाँ, एंड लेट मी टेल यू वन मोर थिंग हियर. जब आप बुक में से क्वेश्चन सॉल्व करोगे, आपका वेक्टर और बुक में जो आंसर दिया है वो वेक्टर टोटली डिफरेंट होगा, क्योंकि आपको मैंने पहले क्लियर किया था, माय मेथड इज टोटली डिफरेंट. बट एट द एंड अगर वो ये सेटिस्फाई करता है तो जो भी आपने कैलकुलेट किया वो करेक्ट ही होगा. ठीक है. क्योंकि आपको पता है देयर आर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन. एक सॉल्यूशन नहीं होता, देयर आर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन. आप टी की जगह पे 2 लेते हो, आपको एक और सॉल्यूशन मिलेगा. 3 लेते हो, एक और सॉल्यूशन मिलेगा. ठीक है. सो इट इज नॉट मैंडेटरी कि आपका जो आंसर है वो बुक से मैच होना चाहिए. आप बस ये रिजल्ट चेक करते हो, दैट विल बी फाइन, दैट विल बी ओके. फिर उसके बाद क्रॉस चेक करने की जरूरत है ही नहीं. दिस इज द वेरिफिकेशन पार्ट. और ये मेरा सजेशन है कि आप ये चेक करो इनिशियली एटलीस्ट, तो एक कॉन्फिडेंस आपको आ जाएगा. ओके.
Now let me calculate for one more vector, one more eigenvalue. कौन सा करना है, 3 या 1 का? एक ही करने वाला हूं, यू टेल मी कौन सा करना है? 1 करो सर। 3 का सर। ठीक है, 3 का आप होगा, करो, one. फिर 1 से जल्दी हो जाएगा. सो लेट मी नाउ फाइंड आइगन वेक्टर करस्पॉन्डिंग टू 1. ठीक है, आपको एग्जाम में एक ही आता है, इसलिए एक ही क्वेश्चन में इतने 3 वेक्टर कैलकुलेट नहीं करने. नाउ नेक्स्ट केस. सर? बोलो बोलो. सर हमको ये वेरिफिकेशन शो नहीं ना करना नहीं 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 शो एग्जाम करना, इट इज ओनली फॉर यू. ये फिर शो नहीं करने, इसलिए मैं स्क्वायर ब्रैकेट में डाला. याद रखो, जब भी मैं कोई चीज स्क्वायर ब्रैकेट में लिखता हूँ वो आपको एग्जाम में मेंशन नहीं करना है, इट इज फॉर यू ओनली. ओके, हाँ. सो नाउ केस 2. सो लेट x इज इक्वल टू, मैं फिर से सेम वेरिएबल लेता हूँ जस्ट टू अवॉइड ए कंफ्यूजन. x to be the eigenvector corresponding to lambda is equal to 1. So what is my statement? Then this implies what? A minus lambda I times x is equal to 0. That is nothing but a, but lambda is 1, so a minus I times x is equal to 0. तो आपको बस करना क्या है, a मैट्रिक्स में से बोलो what is the meaning of a minus I? From a matrix, डायगोनल एलिमेंट। हाँ, from a matrix, sorry, हाँ, from the diagonal elements of a matrix subtract 1. 1 को subtract करना है, Yes. a minus I means 1 को subtract करना है. So can you tell me that matrix? What is that matrix? बोलो. 1, यही पे a matrix है. हाँ. So 1 1 minus 2 3 1 minus 2 3 1 minus 2 3 minus 2 3 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 3 minus 2 1 3 हाँ minus 2 ना, minus 2. Okay, into x1 x2 x3 is equal to 0 0 0. Okay, now consider the augmented matrix. So इसके अभी क्विक कैलकुलेशन करने वाला. So consider 1 1 minus 2 3 1 0 1 1 3 minus 2 and this part. Okay, so after performing operation on R2, क्या होगा ऑपरेशन R2 पे? R2 minus R1. R3 पे क्या होगा? R3 minus R1. So what is that equivalent matrix? So there is no change in first row. यहाँ पे क्या होगा? 1 minus 1 is 0. सर 0 0 2 minus 2. Yes, minus 2 0. Next 0 हाँ 3 minus 0 3 minus 3 plus 2 हो जाएगा ना वो, हाँ 5 5 and minus minus 5. ये इसके इक्विवेलेंट में ही आने वाला है, याद रखो, क्योंकि वो रो 0 होने जाएगा, 0 होगी. So now you can do one simplification here, that you can multiply second row by 1 by 2 on, and you can multiply third row by 1 by 5. ठीक है. So एक मिनट, तो अच्छे से लिखता हूँ. सर हाँ बोलो ना. हम थर्ड रो को रो 3 माइनस 2 टाइम्स रो 2 कर सकते हैं ना, कर फिर सकते नीचे हो. 1 आ जाएगा, फिर स्वैप करेंगे. कर सकते हो, कर सकते हो, कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं. आप कोई भी रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज करो. मे बी आपके पास ऐसा भी हो सकता है, जिस मतलब ऐसा हो सकता है कि आपके वजह से एक और स्टेप इंक्रीज हो रही है, बट एट देन आपको आंसर करेक्ट मिलेगा. ओके, सो यू कैन गो विद एनी रो ट्रांसफॉर्मेशन. देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन ऑन रो ट्रांसफॉर्मेशन. आप कोई भी रो ट्रांसफॉर्मेशन परफॉर्म कर सकते हो, कोई भी. सो 1 minus 2 3 0. ओके, बट जनरली अगर इक्वल आते तो डिवाइड करके उसको 1 1 करो, क्योंकि फिर नेक्स्ट स्टेप में इजी हो जाता है. ठीक है. सो 0 1 minus 1 0. नाउ ऑन R3 दैट R3 minus R2. Done. So the final echelon form is 1 minus 2 3 0. Okay, 0 1 minus 1 0 0 0 0 0. थर्ड रो कंपल्सरी 0 होगी.
ठीक है. And now, so which is an echelon form, so just rewrite that system. So therefore, can you tell me x1 minus 2x2 2x2 plus 3x3 is equal to 0 and x2 minus x3 is equal to 0. So how many equations are there? Number of equations are 2. Number of variables Two are equations. 3. So difference जो आ रहा है वो यहाँ पे भी 1 का आ रहा है. So आपको एक वैल्यू को असाइन करना होगा. So let me assign x3 is equal to t. So that implies, let me write somewhere where t belongs to r, and that implies x2 is t and x1 is what? 2 into x1, sorry 2 into x2 मतलब 2t minus 3x3 minus 3x3 is t. So x1 क्या होगा? Minus t. Minus t. So therefore the capital X, which is equal to x1 x2 x3 and which is equal to x1 is minus t, x2 is just t, x3 is t. Done. You can take t common, so और t के जगह पे 1 रखो, that is nothing but minus 1 1 1. So therefore x is equal to minus 1 1 1 is the eigenvector corresponding to lambda is equal to 1. Done. अभी थर्ड केस में आप करो. हाँ, तीनों केस में कैलकुलेट करना है. दिस इज द क्वेश्चन, क्योंकि मैंने लिखा क्या था, फाइंड आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स. बट थर्ड आप करो. ठीक है. ओके, 3 की पेंडिंग है. सो मैं ऐसे कर लिख लेता हूँ बस. केस जो 3 है, लैम्बडा इक्वल टू 3 की. ओके, दैट इज होमवर्क. वो आप खुद ट्राई करो. बट सर, हाँ बोलो ना. सर x इज इक्वल टू लैम्बडा सैटिस्फाई नहीं कर रहा. x इज इक्वल टू लैम्बडा सैटिस्फाई नहीं कर रहा. ये पार्ट क्या? हाँ, नहीं सैटिस्फाई कर रहा. माइनस 1 1 1. इसको मल्टीप्लाई करना है. माइनस 1 1 1. सो व्हाट इज दैट आंसर? पहला ही नंबर चेक करते हैं. क्या आएगा? माइनस 2, देन माइनस 2, माइनस 4 प्लस 3, माइनस 1 आ रहा है ना? सॉरी हो रहा है. हो ही नहीं सकता, क्योंकि हाँ वही मैं बोल रहा हूँ कि ये आइगन वेक्टर ही है. हाँ, कैलकुलेशन मिस्टेक होगी देन यू कैन चेक. तभी आप म्यूट योरसेल्फ. Okay. Yeah, so now let me take next question. So अभी इसमें इसके आगे मैं अभी जंप करके लिखने वाला. So you have to tell me the answer. अरे यार, एक मिनट ओपन कर लेता क्वेश्चन में. सर, बोलो. अभी I1 होने वाला है, तो उसके पहले आप ऐसे जैसे फर्स्ट क्वेश्चन बैंक शेयर की थी, वैसे ही सेकंड क्वेश्चन बैंक सिर्फ MCQ फॉर्मेट में. Yes, MCQs are already there with me, but I1 जो आपकी होगी, मैंने आपको पहले क्लियर किया है, वो थ्योरी बेस होगी. इसलिए अभी तक मैंने आपके साथ MCQ शेयर नहीं किए, बट टुडे आई विल शेयर. ठीक है. ओके सर. Sir, we can expect it to be probably in Jan end, right, sir? Yes. Maybe after 1 week you will get a schedule. या नेक्स्ट वीक में आ ही जाएगा शायद. Okay. Yes, sir. I think those dates are also finalized. बस आया था वो कुछ तो. एक मिनट. ठीक है, तब तक मैं आपको एग्जांपल देता हूँ और मैं देखता हूँ कि क्या डेट है. पेज नंबर क्या है? 10. ओके.
Now try this. Let me just copy from here. Okay. क्वेश्चन वही है, मैं बस नहीं लिख रहा उस फॉर्मेट में, बट क्वेश्चन वही है कि फाइंड आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स ऑफ दिस. ट्राई दिस, डू इट फास्ट. पहले मुझे क्विकली आइगन वैल्यूज बोलो, क्विक करो, ज़्यादा टाइम इसमें नहीं जाना चाहिए, तो फिर आपको कवर होगा ना पेपर. Okay, your midterm examination is from 7th Feb to 12th Feb. Okay, your midterm examination is from Feb to 12th Feb. Midterm is empty on first 3 units. उससे पहले आपकी आई हो जाएगी, तो आई का शेड्यूल क्या है वो नहीं दिया अभी तक. ओके, सो दैट विल कम टू नो. I1 का फिर फैकल्टी के हिसाब से रहता है, तो वो हो ही जाएगी आपकी विद इन अ वीक. So it will be on MCQs only. No, your first I1 is the theory exam, open book test. Okay, theory क्वेश्चन रहेंगे, और सेकंड आई MCQ बेस होगी. यूनिट 1 यूनिट 2 सिलेबस होगा, तो जैसे यूनिट 2 हो जाएगा we will fix our date. ठीक है. Yeah. So what are the eigen values? 4, 2 and 1. 4, 2 and 1. 1. करेक्ट, लुक करेक्ट, क्योंकि 7 आ रही है सम डायगोनल की, और यहाँ पे भी 7 आ रही है. ठीक है. सो नाउ कैलकुलेट आइगन वेक्टर करस्पॉन्डिंग टू 1 एंड 2 ओनली. 2 ही कैलकुलेट करते हैं, या किसी एक की करस्पॉन्डिंग कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि सेम ही है, कुछ उसमें कैलकुलेशन इतना टफ नहीं है. लेट अस डू इट ओनली फॉर 4. कैलकुलेट आइगन वेक्टर करस्पॉन्डिंग टू 4 ओनली, जिन्होंने किया है. सो योर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इज लैम्बडा क्यूब माइनस ट्रेस ऑफ ए इंटू लैम्बडा स्क्वायर प्लस m11 m22 m33 into lambda minus determinant of a equal to 0. जिन्होंने किया है मुझे बस वैल्यू बोलते जाओ. सो लैम्बडा क्यूब माइनस व्हाट इज योर ट्रेस 7, व्हाट इज m11, Sir, total 8. Total is sir 14. टोटल इज 14. ठीक है, मुझे बोलो 1 by 1 ही बोलो, अभी बाकी स्टूडेंट को भी हेल्प होगी. 8, 3 8 plus 3 and 3. हाँ. ठीक है. एंड व्हाट इज डिटरमिनेंट? 8. 8 ओके, सो दिस इज योर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन. ये भी आपको 1 मार्क के लिए आ सकता है MCQs में. व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन? सो लैम्बडा क्यूब माइनस 7 लैम्बडा स्क्वायर प्लस, इस पे बहुत सारे MCQs है, आप प्रैक्टिस के लिए मैं शेयर कर देता हूँ, क्योंकि वो चाहिए MT एग्जाम के लिए, तो वही है, MCQs ही प्रिपेयर करना है. सो आई विल शेयर टुडे इटसेल्फ. नेक्स्ट, so you can find its roots. So the eigen values are 4, 3 and 1 na? Yes sir. Sorry, 2 and 1. 4, 2 and 1. Sir, 2 and 1. हाँ. So 4, 2 and 1. ठीक है. Now let us calculate eigen vector. So केस 1 ही लेता हूँ मैं, एक ही केस में करते हैं. So lambda equal to 4 के लिए सॉल्व करते हैं. So let capital X x1 x2 x3 be the eigenvector corresponding to eigenvalue lambda is equal to 4. Therefore
a minus lambda times I times x is equal to 0. That is nothing but a minus lambda is 4, so 4 times I times x is equal to 0. इसका मतलब क्या है, डायगोनल से आपको 4 को सब्ट्रैक्ट करना है. So check that matrix again and subtract 4 from diagonal. तो क्या मिलेगा, बोलो. अभी मैं ये यस -3. सो -3 -1 and -3 0 0 0 -1 0 0 -1 -1. -3 1 minus 3 0 0 0 0 0 0 -1 -1 -1 -1 0 0 -1 -1 times x equal to 0 0 0 0. ठीक है, ओके. So now just consider the augmented matrix. 0 -5 नहीं है क्या? क्या हुआ, करेक्ट है ना या कुछ मिस्टेक है? लास्ट में 0 -5. -1 and 3 -4 is -1. Look हाँ correct. सही है सर. सही है सर. सही. So -3 0 0 0 0 -1 -1 0 0 -1 -1. अभी मैं ऑपरेशन नहीं लिख रहा हूँ, MCQ जैसे सॉल्व कर रहा हूँ. तो आपको पता है ये लास्ट रो 0 हो जाएगी क्योंकि सिमिलर है. सो दैट आई कैन राइट इट एज -3 0 0 0 0 -1 -1 0 and your last row will be 0. थियरी में ऐसे नहीं लिखना है, मैं फिर से बोल रहा हूँ. इफ यू राइट लाइक दिस यू विल नॉट गेट मार्क्स. Okay, so whether this is an echelon form? Yes, sir. Okay, so which is an echelon form? Yes. So therefore, rank of this augmented matrix, which is equal to rank of A, which is equal to 2, which is less than number of variables, which are 3. Okay. So therefore, system has infinite solution. सर वहाँ पे a नहीं आएगा ना, सिर्फ रैंक में सर a माइनस लैम्बडा i आएगा ना, a माइनस लैम्बडा i कॉमा 0. कहाँ पे? सर हाँ. सर ये जो जैसे रो ऑफ ब्रैकेट में सर a माइनस लैम्बडा हाँ i हाँ आएगा. ठीक है. हाँ हाँ. You can consider it as a B. Yes, sir. Yes. So let me use a B variable. सर एग्जाम में ये लिखा तो सर वहाँ पे मार्क्स कटेंगे ना. Yes, mathematically it is not correct, but it's better if you define this as B. ये better होगा. ठीक है. Okay. So system has infinite solution. So rewrite that system. So -3x1 done equal to 0 minus x2 minus x3 equal to 0. So how many equations are there? There are 2 equations. Variables are 3. Still here difference is 1. तो क्या करना होगा आपको? Can we assign x1 as t? No sir. No, क्योंकि x1 calculate हो गया आपका. x1 is 0. It is already calculated. So you cannot assign value for x1. So the only choices are x2 and x3. So let me assign x3 as t, where t belongs to R. So that implies your x2 is minus t and x1 तो आपका पहले से 0 है. ठीक है. So your eigenvector is, therefore can I write directly what is my eigenvector? Can you tell me directly? Sir 0 t minus t and 2. t के जगह पे 1 लेके आपको लिखना पड़ता है. So 0 -1 1 डन, क्योंकि अभी MCQ के पॉइंट ऑफ व्यू में जल्दबाजी कर सकते हो. सो देयरफॉर दिस इज आइगन वेक्टर करस्पॉन्डिंग टू लैम्बडा इज इक्वल टू 4. ओके, सो आई थिंक अभी आपको ये पार्ट समझ में आ रहा. ठीक है. ऑलमोस्ट 3-4 एग्जाम्पल्स वी हैव कंसिडर. सो डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज में आइगन वेक्टर कैसे कैलकुलेट करते हैं? अभी इसमें कुछ डाउट्स है आपको? यू कैन कैलकुलेट वन मोर आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर इफ यू वांट. मैंने एक केस में दिया, बाकी 2 केसेस में आप कैलकुलेट करके देखो. इट इज अप टू यू. ओके. सर लैम्बडा इज इक्वल टू 1 के लिए बताओ. 1 के लिए. ओके, लेट मी डू इट. सो केस 2,
लैम्बडा इज इक्वल टू 1. सो इस केस में क्या होगा, a माइनस लैम्बडा आई टाइम्स x इक्वल टू 0, बट लैम्बडा इज 1, सो a माइनस आई टाइम्स x इक्वल टू 0. तो आपको क्या करना है, बेसिकली 1 सब्ट्रैक्ट करना है a मैट्रिक्स से. तो व्हाट इज योर फर्स्ट रो, 0 0 0, करेक्ट ना? करेक्ट है. यस सर. सेकंड रो क्या आएगी, 0 2 minus 1. 0 2 minus 1. 0 2 minus 1. What will be your third row? 0 minus 1 2. 0 minus 1 1. 0 minus 1 2 sir 2. ठीक है. ओके, टाइम्स x1 x2 x3 is equal to 0 0 0. Okay, so let me complete this. ठीक है. So consider the augmented matrix. Okay, आपका प्रॉब्लम समझ में आ गया मुझे. So consider the augmented matrix. So which is 0 0 0 0 0 2 minus 1 0 0 minus 1 2 0. हाँ, अभी मुझे ये बोलो, एक्लोन फॉर्म की जब मैं डेफिनेशन दे रहा था, व्हाट इज द कंडीशंस ऑन 0 रोज? All the 0 rows should be at bottom. बॉटम. तो अगर कहीं पे 0 रो आती है तो वो कंपलसरी बॉटम पे चाहिए. तो पहला जो आपका ऑपरेशन होगा, दैट मस्ट बी R1 इंटरचेंज विद R3. ठीक है. सो देयरफॉर इट बिकम 0 minus 1 2 0 0 2 minus 1 0 0 minus 1 2 0. अभी आपका ऑब्वियस क्वेश्चन क्या है कि सर यहाँ पे पहला नंबर 0 ही आ रहा है. सो यहाँ पे रो ट्रांसफॉर्मेशन से सर हमने गलत लिखा है. हाँ सॉरी. ओके ओके. हाँ, तो अभी आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर यहाँ पे ये जो एंट्री आ रही है, अभी तक किसी भी एग्जांपल में ये एंट्री 0 नहीं थी. ठीक है ना? ओके, अभी यहाँ पे 0 आ रही है. इससे एक्लोन फॉर्म में कुछ भी इफेक्ट नहीं होगा. ओके, अभी मुझे पहले ये बोलो, इज इट पॉसिबल टू मेक दिस एंट्री नॉन जीरो यूजिंग रो ट्रांसफॉर्मेशन? करना पॉसिबल है यहाँ पे? नो. रो ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करके आप कभी भी यहाँ पे नॉन जीरो नंबर नहीं लेके आ सकते हो. या अगर आपको समझ में आता है, इसका मतलब क्या है, कोई भी कुछ भी ऑपरेशन परफॉर्म करो, दिस नंबर ऑलवेज 0. ठीक है. तो ये जनरली कौन से केस में होता है? इफ योर फर्स्ट कॉलम इज 0. हमेशा याद रखो, इफ योर फर्स्ट कॉलम इज 0, इसको हाइड ही करते जाओ आप. इस कॉलम को हाइड करके इस मैट्रिक्स में चेक करो एक्लोन फॉर्म क्या है. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सर पर बोलो सर, अगर फर्स्ट कॉलम में सर सारे 0 तो उन्हें कंसीडर करने की जरूरत ही नहीं है ना सर, फिर डायरेक्टली, क्योंकि सर ऐसे भी एक्लोन फॉर्म का सर यही कंडीशन है ना सर कि जो फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट है फर्स्ट रो में, उसके बाद की जो सेकंड रो है उसके मतलब राइट साइड में होना चाहिए सर. यस सर. जो 0. हाँ, बट वो आपको लिखना होगा. आप ये दिमाग में रख सकते हो कि वी डोंट नीड टू कंसीडर दिस कॉलम, बट जब आप मैथमेटिकली लिखते हो तो आपको लिखना होगा वो पार्ट. ओके, so we have to check after the first non-zero element, right? yes. So you can start from this now. तो ये इसका पहला नॉन जीरो नंबर है, इसके नीचे के आपको सारे एलिमेंट 0 करने हैं. ओके, आपका अप्रोच करेक्ट है, बट जब आप मैथमेटिकली लिखते हो इसको डिलीट करके मत लिखो. हाँ, क्योंकि वो कॉलम है वहां पे, तो उसको वैसे कंटिन्यू करते जाना है बस. ओके, सो कैन यू टेल मी ऑपरेशन ऑन R2? R2 is equal to R2 plus 2 R. R2 plus 2 प्लस 2 टाइम्स R1. डन. आई थिंक मिल जाएगा फिर एक्लोन फॉर्म. So the 0 minus 1 2 0. Next is 0. This is 0. बोलो. This minus 1 plus 2 times 3 ना? 3. Yep. And your last column is 0. Still not. Yes, it's okay. सेकंड रो 0 नहीं आएगी, क्योंकि क्यों नहीं 0 आएगी? क्योंकि डिफरेंस 1 है. कहा गया वो? जहाँ अभी नीचे आता है ना, सॉरी. हाँ ठीक है. ओके, अभी इसके बहुत सारे ट्रिक्स है. ओके, इतना याद रखो. अभी ऐसा होगा कि क्या बोलूँ क्या नहीं, इतना हो रहा है कन्फ्यूजन. ओके, इतना याद रखो, अगर वो आइगन वैल्यू, ये इन जनरल स्टेटमेंट इफ यू वांट टू राइट डाउन यू कैन राइट डाउन. अगर इफ योर आइगन वैल्यू इज नॉन रिपीटेड, 4 रिपीट हो रहा है क्या कहीं पे? नहीं रिपीट हो रहा है. 2 रिपीट हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है. 1 रिपीट हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है. So if your eigen value is non-repeated, in that case you will get difference always 1.
क्या स्टेटमेंट समझ में आ रहा है? क्या क्या बोल रहा हूँ मैं? यस अब देखो 4 आपकी नॉन रिपीटेड आइगन वैल्यू थी, इसलिए डिफरेंस आपका 1 आ रहा है। डिफरेंस मतलब नंबर ऑफ इक्वेशन, मतलब ओनली लास्ट रो इज 0, दैट इज व्हाट आई वांट टू से। एक ही रो 0 हो जाएगी अगर वो नॉन रिपीटेड है तो। अगर वो नंबर नॉन रिपीटेड है तो आपकी लास्ट रो ही कंपल्सरी 0 होगी। अगर वो रिपीटेड है सो मे बी लास्ट के 2 रोज मे और मे नॉट, कुछ केसेस में लास्ट की रो 0 होगी, कुछ केसेस में लास्ट के 2 रोज 0 हो जाएंगे। सर मतलब सर आप कह रहे हो कि अगर लैम्बडा की 2 वैल्यूज एटलीस्ट सेम होती है तो ये अप्लाई नहीं कर सकते ना सर? मतलब हाँ, अगर ये अभी यहाँ पे आइगन वैल्यू आपकी 1 चल रही है, अगर सेकंड आइगन वैल्यू भी 1 रहती ना तो मे बी ये सेकंड रो मतलब इन दैट केस इन सम एग्जांपल यू विल गेट योर सेकंड रो एज 0 रो, ये मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। बट इफ इट इज नॉन रिपीटेड देन सेकंड रो मस्ट बी नॉन 0। अभी समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? यस सर। हाँ, नॉन रिपीटेड में आपकी सेकंड रो कंपल्सरी नॉन 0 होगी। मतलब अगर बाय मिस्टेक अगर आपका यहाँ पे 0 नंबर आ भी जाता है ना, आप फिर से चेक करो, अरे पॉसिबल आपके दिमाग में आना चाहिए यार पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि वो नॉन रिपीटेड आइगन वैल्यू है, तो ओनली लास्ट रो इज 0। ओके, यस सो इसका सिंपल मीनिंग क्या है? ओके, लेट मी गिव यू इन मैथमेटिकल लैंग्वेज। फॉर नॉन this all statement is for 3x3 matrix. In case of 3x3 matrix, non repeated eigen value अगर आपके पास आती है, so in that case what is your rank of augmented matrix? 2 चाहिए ना? 2, yes sir. यस सर। So rank always equal to 2, ठीक है। But if it is repeated, Then rank is 1 sir. no, it is less equal to, मतलब 2 भी है कुछ केसेस में और 1 भी है, Yes sir, right. ऐसा। ओके, सर कैन वी एक्सपेक्ट 4x4 मैट्रिक्स क्वेश्चंस फ्रॉम दिस चैप्टर? नॉट एट ऑल, ओके सर। ठीक है। ये एक ऑब्जर्वेशन है, इसका रीज़न भी है बट अभी आपको इतनी जल्दी नहीं समझ में आएगा, ठीक है। ओके, हाँ, तो इसलिए मैंने आपको पहले बोला कि आपको समझ में आ जाता है कि क्या होगा, मतलब ये रो अगर मेरे 0 आ जाते हैं मुझे वहीं पे क्लिक हो जाता है, रॉन्ग किया है मैंने कैलकुलेशन, ठीक है। नाउ दिस इज एन एक्लोन फॉर्म, जस्ट रीराइट योर लीनियर सिस्टम। सो -x2 + 2x3 = 0 and 3x3 is equal to 0. So this implies your x3 is 0 and this implies your x2 is 0. बट कितने इक्वेशन थे आपके पास? 2 equation. 2 इक्वेशन। वेरिएबल्स कितने थे? 3। डिफरेंस कितना है? 1। तो मैंने क्या बोला था आपको, अगर डिफरेंस 1 आता है तो आपको एक वेरिएबल को असाइन करना ही होगा। सो व्हाट इज दैट वेरिएबल नाउ? अरे x3 x1 हाँ, x1 कैन वी असाइन x3? नो, क्योंकि उसका आंसर 0 है। कैन वी असाइन x2? नो, बिकॉज उसका आंसर भी क्या है? 0। सो व्हाट इज योर लास्ट चॉइस? x1। असाइन तो करना ही है, वी कांट स्किप दिस, असाइन तो करना ही है। तो x1 मेरा क्या होगा? t, वेयर t बिलोंग्स टू r। चलो अच्छा हुआ आपने ये क्वेश्चन बोला। सो व्हाट इज माय आइगन वेक्टर? 1 0 0, करेक्ट ना? यस सर। sir. करस्पॉन्डिंग टू लैम्बडा इज इक्वल टू 1 था ना? 1 Done. यस, ऐसा ही कुछ तो मुझे भी याद नहीं किसका चल रहा है, 1 का चल रहा है, ठीक है। नोट डाउन, इस क्वेश्चन में 2-3 क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो जाएंगे, मतलब प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। सर एग्जाम बोलो ना, बोलो एग्जाम में क्या? सॉरी, योर वॉइस इज ब्रेकिंग। यस, sir हर केस और हैव टू राइट ईच केस ऑफ लैम्बडा फॉर ईच केस, आई मीन वी हैव टू राइट ईच केस फॉर ईच लैम्बडा वैल्यू। हाँ, ओके, उसको क्लियर करता। अगर मैं आपको एग्जाम में ये देता हूँ, मतलब अभी ओपन बुक टेस्ट के बारे में बोल रहा हूँ, इफ आई गिव यू दिस क्वेश्चन, फाइंड आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स ऑफ दिस, तो तीनों आइगन वैल्यूज तो सब में कैलकुलेट करने, देयर इज नो क्वेश्चन अबाउट आइगन वैल्यू, क्लियर? यस सर। हाँ, बट अगर मैं ऐसा क्वेश्चन देता हूं तो तीनों आइगन वैल्यूज के करस्पॉन्डिंग आपको आइगन वेक्टर्स कैलकुलेट करने, बट एग्जाम में मैं इसको चेंज करने वाला हूं। कैसे? फाइंड आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर करस्पॉन्डिंग टू लार्जेस्ट आइगन वैल्यू। इसका मतलब क्या हो गया?
ओके मैं ऐसे चेंज करूंगा जो उसका मतलब क्या okay, होगा value largest इन है, दोनों में से समझ इन गया। तीनों में से लार्जेस्ट कौन सा है 3 है, सो 3 के करस्पॉन्डिंग ही कैलकुलेट करना है। या तो मैं ऐसा क्वेश्चन पूछूंगा फाइंड करस्पॉन्डिंग टू स्मॉलेस्ट आइगन वैल्यू, तो स्मॉलेस्ट इज -2, तो यू कैन कैलकुलेट एट -2, ठीक है। यस तो मतलब इसलिए मैंने आपको बोला था कि एग्जाम में मैं आपको एक ही ये वाले आइगन वेक्टर सबसे देने बड़ी- वाला हूँ, एक Yes. ही आइगन वेक्टर देने वाला हूँ, बस क्वेश्चन में ये ट्विस्ट करूंगा मैं, स्मॉलेस्ट आइगन वैल्यू के करस्पॉन्डिंग कैलकुलेट करो या तो लार्जेस्ट आइगन वैल्यू के करस्पॉन्डिंग कैलकुलेट करो, ऐसा ही होगा बस, ठीक है। उस हिसाब का ही क्वेश्चन मैं देता हूँ। यस एंड नाउ कितना टाइम है, कितने बजे तक था ये, और एक अभी 8 important minutes. question Still 8 है। minutes. 8 minutes are हो remaining. जाएगा फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। यस बट उसके पहले ना मुझे ये इसमें पता ही नहीं कि रिपीटेड आइगन वैल्यूज कहाँ पे है, दैट इज माय प्रॉब्लम। इसमें से कौन से एग्जांपल में रिपीटेड आइगन वैल्यूज है, तो पहले कैलकुलेट कर लेते हैं आइगन वैल्यूज, फिर देखते हैं। सो टेल मी क्विकली व्हाट आर द आइगन वैल्यूज ऑफ दिस। पहले आइगन Sir? वैल्यू, हाँ बोलो ना। सर इसके पहले वाला अभी जो क्वेश्चन कर रहे थे हाँ उसमें x1 इक्वल टू t कैसे ले सकते हैं, क्योंकि x1 का तो सारे इसमें मैट्रिक्स में 0 ही है ना वैल्यू। x1 is not here, no, x1 is not present in the variable, करेक्ट है ना, हाँ उसका कोएफिशिएंट 0 है, इसका मतलब x1 की वैल्यू 0 नहीं है ना, x1 आपके पास है ही नहीं, Write it as so 0t. there is no condition on x1, इसका मतलब क्या, there is no condition on x1 मतलब x1 can take any values। हाँ राइट, गॉट इट सर, गॉट इट, थैंक यू। ट्राई दिस, मुझे पहले आइगन वैल्यूज बोलो, उसके बाद ही कंटिन्यू करना है कि नहीं मैं बोलता हूँ। Yes. टेल मी क्विकली व्हाट आर द आइगन वैल्यूज। शायद इसके रिपीटेड आ जाएंगे, आई होप सो। One, 3 and 2, sir. 1 3 ओनली 2. 1 3 2 है क्या? हाँ सर. 1 3 2 मतलब 5 6, अरे फिर इसको नहीं लेना है, वेट यार इसमें रिपीटेशन का कहाँ डाला मैंने, इसमें से कुछ केसेस में रिपीटेशन है बट अभी मुझे बुक ही चाहिए फिर। ओके लेट अस ट्राई दिस, मुझे रिपीटेशन का एग्जांपल लेना है, ट्राई दिस। इसके कैलकुलेट करो। टेल मी दिस होल फैक्टर। 9 आ रहा है क्या? नहीं 9 नहीं हो सकता। What is determinant? 6 है क्या? बोलो इसके रूट्स क्या है? सर लैम्बडा नहीं मैं आने के बाद कर लूँगा। हाँ एक 5 मिनट में जाओ। ठीक है आ जाओ। तो उधर 5 आता 7 की जगह. 1 2 3 है क्या? क्या क्या मिस्टेक हो गई है लास्ट की ना? ओके 5 आएगा उधर, 5 705. ठीक है लैम्बडा आएगा। सर रूट्स 1 2 3 आ रहे हैं। ओके। ये सर 1 2 3 One, two. इसका भी कोई यूज़ नहीं है। ओके ओके लेट मी गिव यू, छोड़ दो ये सारे, आई कैन क्रिएट। बुक में है बहुत सारे एग्जाम्पल बट चलो होगा तो नहीं बट ठीक है। ए इज इक्वल टू, राइट डाउन, टेक दिस क्वेश्चन, ए इज इक्वल टू 2 0 0 1 2 0 0 0 -1. Okay, calculate its eigenvalues.
विल कंटिन्यू दिस क्वेश्चन इन नेक्स्ट लेक्चर, होगा नहीं बट ठीक है। लैम्बडा क्यूब माइनस 3 लैम्बडा स्क्वायर, प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, जस्ट टेल मी दिस फैक्टर डायरेक्टली नाउ। क्या लिख लेता हूँ? 0 आ रहा है क्या ये? ओके हाँ यस सर 0। नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। नहीं, हो सकता है ओके हाँ। लास्ट का बोलो डिटर्मिनेंट। Determinant is -4. ऐसे आ रहा है सबका? हाँ सर ओके नाउ -4 तो +4 हो गया। +4 होगा ना। हाँ, उसका साइन ऑलरेडी माइनस था ना। ठीक है, नाउ टेल मी द रूट्स। मुझे आइगन वैल्यूज पहले ही पता है, सो टेल मी द रूट्स। -1 and 2. ओके, तो आपके पास कैल्सी में दो ही ऑप्शन आ रहे हैं, -1 एंड 2। बट आपको मैंने पहले, ओके लेट मी क्लियर हियर, इफ मैट्रिक्स हैज ऑर्डर 3/3 देन देयर मस्ट बी 3 आइगन वैल्यूज, क्योंकि आपको पता है कि पॉलिनोमियल की डिग्री 3 है तो 3 रूट्स तो रहेंगे। तो ये जो थर्ड रूट होगा, कैल्सी में प्रॉब्लम क्या है, इफ दैट रूट इज इन रिपीटेशन, अगर वो रूट रिपीटेशन में आता है तो कैल्सी में वो थर्ड रूट वो शो नहीं करता। सो हाउ यू फाइंड दैट थर्ड रूट? प्रोडक्ट ऑफ रूट या सम ऑफ रूट से कर लेंगे ना, -b ठीक है, क्योंकि उसके लिए रिजल्ट याद रखो, ये जो भी थर्ड रूट होगा, लेट मी टेक लैम्बडा, इनकी जो सम होगी -2 प्लस लैम्बडा प्लस दिस, ये सम क्या होनी चाहिए? ये 3 आनी चाहिए। और माइनस टाइम्स कोएफिशिएंट ऑफ लैम्बडा स्क्वायर। जिनको नहीं पता है ये रिजल्ट याद रखो। तो अभी यहाँ पे 2 लेने के बाद ही वो सम 3 आ जाएगी। ठीक है, 2 लेने के बाद ही वो सम 3 आ जाएगी, इसलिए ये आपको ऐसे कैलकुलेट करना है। एंड राइट डाउन वन मोर रिजल्ट, आइगन वैल्यूज ऑफ अपर और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। करेक्ट, ओके। व्हाट आर दोज आइगन वैल्यूज? आप देखो जो डायगोनल पे वही आइगन वैल्यूज आ रहे हैं। ठीक है, सो आइगन वैल्यूज ऑफ अपर एंड लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स आर the elements on the diagonal. Done. It's very much easy ना। तो करना ही नहीं है ना, यही रिजल्ट यूज करो डायरेक्टली, यही लिखो एग्जाम में। Since given matrix is upper triangular matrix, therefore eigen values are -1, 2, 2. Done. Okay. ठीक है, करना ही नहीं है इस बेस से। ओके, ये मैं आपको इसलिए एग्जांपल ले रहा हूँ क्योंकि ये सारे रिमार्क पहले देने से अच्छा है मैं पहले एग्जांपल लूँ और फिर बाद में 1 by 1 रिमार्क दूँ। ओके, अगर आप इसमें देखोगे ना इस फॉर्मूला शीट में, यू कैन फाइंड ऑल दोज रिमार्क्स हियर। ये ऊपर की थियरी जो सेक्शन है ना, इसमें आप देखो मुझे इतने सारे रिमार्क कवर करने हैं। यू कैन सी दिस रिमार्क्स। Sir, you have shared it with us, right? It is already shared. I don't think about this. ये प्रीवियस पैटर्न की क्वेश्चन बैंक है, हाँ शायद ये नहीं शेयर किए, बट ठीक है मैं एक बार चेक करता हूँ, नहीं है तो फिर से शेयर करता। ओके, सो विल स्टॉप बिकॉज़ वी बोलो हेलो सर, वो सॉल्व के वाला शेयर करेंगे सर आप? यस, आई थिंक बिफोर दिस